Hey, hi guys. Good evening, everyone. Perfect, Hi man, guys, perfect. Hi. Hi, Lon. How are you? I'm good. How are you? All good, all Can good. you hear me fine? Yes, it's perfect. Fantastic. Nice. So again, thank you so much for coming live. I have a lot of questions. I'm sure viewers have a lot of questions. So without any further ado, let's start. Uh, tell us a little bit about your journey, Anand. For sure. For the uninitiated, the easiest way to put it is I'm a over literate nobody. So I am one of those who just kept doing education till he realized that I really didn't have to, get into so much of literacy to find a job or something that I'm happy with. I'm an engineer by my first degree. I've worked in stock market for a long time. Right. I'm an MBA. I've worked in corporate finance, and I love, formula. Hi, Isha. Hi, Rabnoor. So I've done many hats, and then just one fine day I chose one career which I had studied nothing about, zero, like entirely coming from YouTube, and that was photography. So that's how I stumbled into photography. I was working in Pune. I went up to my boss. I told him that, listen, I know I have a good corporate finance career in front of me, but I wanted to discuss with you before I take any decisions. Can I be a photographer? I thought he will scold me. He said, यार तुम photographer बनना चाहते हो मैं pianist बनना चाहता था मैं नहीं बन पाया तुम तो जाओ. And that's how I just packed my bags in literally a month. I was in Bombay, and that's where I started my photography journey. I think you had a very kind boss, I think. Yeah, and a very, very good boss. In India, I think photography as a career is something that you just don't choose for yourself. You sort of, the entire society around you has to support you, or at least not oppose you in that career choice. Right. Hi, Nachi, how are you? Sorry, I'm gonna keep saying hi to my friends Of course, of course. that came. Right. So yeah, So that's how I found my way into this profession. okay, okay. And what was your parents or friends' reaction? Because I'm sure boss तो kind था, but वो families कितना समझते हैं पता नहीं यार. Right. So I have this, I'm a dopamine addict, right? So I have to do something new with my life every now and then, um, be it travel, be it photography. And for my friends, I think they weren't very surprised because I have this really bad habit of dropping some life-changing decisions on them. Like casually, we were drinking in the bar one day, and I'm like, okay, guys, next weekend I'm not available because I'm moving to US. So Right. I have this habit of dropping these life-altering decisions as a very casual thing. So I don't think they were surprised. Uh, Fortunately, I also have a tendency of um, I don't know. So every time I take this, adrenaline-filled decisions, I then I have this nagging habit that I have to get through the entire tunnel. I can't remember a single project in my life that I left halfway. Oh, amazing. So, oh, तीर्थ सिंह हिंदी में ओके फाइन. सो मुझे ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट याद नहीं आ रहा है लाइफ में जिसको मैंने आधे रास्ते छोड़ दिया. एंड फोटोग्राफी भी वैसे ही शुरुआत हुई कि इट स्टार्टेड एज कि चलो ट्राई करते हैं देखते हैं क्या होगा. बट Hmm. वंस आई सॉ द काइंड ऑफ स्कोप दैट इज अवेलेबल इन द फील्ड देन इट वाज लाइक fair enough, all or nothing. Like they say in poker, na, all in. It was a very all in moment pretty much in the first like 6 months. So it was easy to convince everyone that listen guys, I'm all in for this. So it's not a temporary phase. Right, So right, yeah. right. I'm doing this for last 8 years. My parents are still not convinced. So I think Yeah. Have strict you or shown not, them your portfolio? अपना portfolio दिखाया कि नहीं? कोशिश यार है. हाँ like आपके portfolio के बाद तो कोई भी convince हो जाएगा. So I think you're safe. True that. Good idea. Um, Anand, last 1 year has been very very difficult for all of us. I mean, all the industries to be honest, but photographers के लिए तो definitely काफी difficult year था. Um,
any light you want to put on that, or any advice you want to give photographers? यार डिफिकल्ट नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था. ठीक है, दैट्स द ओनली वे आई लुक एट इट. You want a difficult year, I'll give you a difficult year. 2008 was a difficult year. 2008 में जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, 2011 लग गया उनको, like 3 साल लग गए to get a regular job back, or even at a pay cut. Right? We are back in one season. We lost about half a season and we are back. What it was unexpected. और वो भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आई डोंट नो कोई ऑफिशियल स्टडी है कि नहीं, बट अगर कोई डेमोग्राफिक का स्टडी करेगा इंडियन फोटोग्राफी की अभी, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी बिटवीन 25 to 33 years of age, or maybe 20 to 32 years, right? अब जो बंदा 30 या 32 साल का है, उसने 2008 में वो शायद स्कूल कॉलेज में था, उसने 2008 को फील ही नहीं किया एज अ प्रोफेशनल. और जो बंदा उससे यंग है तो वो तो फिर बहुत ही स्कूल में था, तो उसने तो देखा ही नहीं कि एक्चुअल रिसेशन क्या होता है. तो हम लोग ने हमारा करियर स्टार्ट किया एक वेव में, वो वेव बढ़ती गई और हमें लगता गया दैट इज हाउ करियर्स विल बी. इट वाज जस्ट अ रियलिटी चेक, राइट? एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग, जो भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज बेयर इट इन माइंड कि आगे से आने वाले 5 या 10 साल में ऐसा एक और फेज आएगा. वो किस तरह से आएगा पता नहीं, बट आएगा. तो प्लीज डोंट से कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट ईयर गया. प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि वो डिफिकल्ट ईयर आने वाला है. हाँ, अनएक्सपेक्टेड गया, श्योर, क्योंकि हमने किसी नहीं सोचा था कि कोरोना आ जाएगा, तो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड समझ में आता है. एंड द प्रिपरेशन फॉर अनएक्सपेक्टेड ईयर डजंट हैपन ऑन दैट ईयर. जब गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है तब पेट्रोल नहीं भरवाया जाता है. ट्रू. तो अगर आपको ड्राइविंग का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, सो यू नो कि आप कुछ ना कुछ बैकअप लेके चल रहे हो वहां पे. जिन लोगों ने बैकअप लिया वो बच गए, जिन लोगों ने बैकअप नहीं लिया, अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में कितने ही लोग, कितने ही सुसाइड केसेस हुए, कितने ही लोगों ने प्रोफेशन चेंज कर लिया, विच इज सो डिसहार्टनिंग टू हियर. बिकॉज इसमें मैं नहीं मानता कि आदमी की गलती थी या हालात की गलती थी. आई फील दैट इट वॉज the lack of preparedness, lack of education जो आज हम यहाँ कर रहे हैं. I feel कि 4 लोग अगर उससे ये चीज सीख जाते हैं कि ये एक रियलिटी है, कि एक फेज वापस आएगा, बुरा फेज, ये एक चांस नहीं है, एक रियलिटी है. सो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कर लो. प्लीज अपने आई सी सो मेनी यंग फोटोग्राफर्स, आईफोन है और मैकबुक है और फॉरेन हॉलीडेज हो रहे हैं और सब हो रहा है, एंड बैंक अकाउंट अभी लैक्स में भी नहीं है. That doesn't add up for me, यार. मतलब what are you planning कि जिस दिन कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तब क्या करोगे? True. तो that category of people really felt the pinch in 2020. Okay. So yeah, I hope कि we are all able to prepare ourselves better. True. So when you said about 2008, I remember a friend of mine who was in US. उन्होंने उनका MS just complete किया था और recession hit किया. So around 8 to 9 months they had no job. 5 of them were sharing condo like a small place, and 5 of them were stuffed inside that. And he used to say कि शाम को खाने को नहीं होता था तो nearest गुरुद्वारा में जाके हम खा के आते थे. Winter time, time we used to walk down, eat and come back. We were completely frozen, but that's how they spent like whole 9 months of their life. Of course, now we are thinking, but yeah. So aptly said, Anand. I mean, very insightful. It was not a bad year. Basically, unexpected था. True. थोड़ा सा पैंडेमिक से पहले चलते हैं, एंड प्री पैंडेमिक एरा जहाँ पे बिग फैट इंडियन वेडिंग्स हुआ करते थे. शायद पैंडेमिक खत्म होगा तो वापस वही ट्रेंड देखने कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कोई ऐसा करण अर्जुन टाइप फ्लैशेस आ रहे हैं, कुछ तो था. हाँ, बिग फैट इंडियन है नहीं, जस्ट किडिंग. या टेल मी. I'm seriously hoping that it settles down and we go back to doing that again, because yeah कोई बात अच्छा लगता है. Yeah, what I was saying was you have covered so many of them, big weddings. Any specific challenge that you faced? चैलेंज आई थिंक वेडिंग का नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजर्स का होता है. आई हैव सीन, सो द स्मूदेस्ट वेडिंग, आई डोंट नो अगर अदिति फ्रॉम
Reels and Frames is on this live session or not, but we all covered Akash. He's saying ये उन Sorry, दिनों की बात. ये उन दिनों की बात है यार. So I'll tell you, I'll give you an example. The easiest wedding that we covered was Akash Ambani's. Hi, Marie. Oh, So most people would assume कि Akash's wedding, Akash and Suka's wedding was मतलब बहुत ही complicated रही होगी और बहुत pressure रहा होगा. Actually उन लोगों ने रिलायंस ने एक टीम बनाई थी 7 लोगों की, जिसका काम ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी संभालना था. मतलब उनका काम था टीम्स को संभालना. तो चीजें इतनी वेल डिफाइंड थी. एक पूरा डिटेल्ड शो फ्लो आता था. हाय सैंडी. एक पूरा डिटेल शो फ्लो आता था. एक सीटिंग चार्ट आता था. उसमें हमारी पोजीशंस मार्क्ड होती थी कि मंडप यहाँ है, आप लोग का एरिया यहाँ 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 डिफाइंड होगा, मूवमेंट अलाउड है नहीं है, ये पहनना है नहीं पहनना है. इतनी तरीके से ऑर्गेनाइज था कि हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो बिगेस्ट वेडिंग्स में चैलेंज ये होते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए जाए तो फिर आप बिगेस्ट, मतलब आप एक राजस्थान की वेडिंग कोई ले लो, ठीक है, आप उदयपुर गए, एक छोटी सी वेडिंग में कितने सारे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं. आपको किसी ने बोला कि जगमंदिर में से वेडिंग है और आपको शूट करना है, बट सामने वाले ने बोट ही अरेंज नहीं करी. आप तो बिगेस्ट ग्रेटेस्ट शॉट लेना चाह रहे हो, बट सामने वाला एक छोटी चीज भूल गया कि यार फोटोग्राफर को अगर कैप्चर करना है तो उसको तो एक अलग बोट देनी पड़ेगी. कितनी छोटी सी बात है. तो for big fat weddings, the biggest challenge is or the weakest link sometimes is the event planner. तो मेरे हिसाब से, and this is again my suggestion, जितने भी लोग यहाँ पूछते हैं कि सर आप लोग इतने अच्छे से इतने ऑर्गेनाइज शॉट कैसे ले आते हैं, हमारी टीम में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसका सोल काम सिर्फ यही है कि ये सारी चीजें आयरन आउट हो जाएं बिफोर वी शो अप टू द इवेंट. यू कैन इमेजिन, कुछ लोगों को मैं जानता हूं कि जो मतलब 10-10, 15-15 लोगों की टीम लेके जाते हैं, फोटोग्राफर ही बैकअप कर रहा है, वही अब गाड़ी वाले को कॉल कर रहा है, वो अपना खाना खुद देख रहा है. yes. तो एंड धीरज इज हियर फ्रॉम माय टीम. धीरज हैज डन प्रोडक्शन फॉर Sonam Kapoor, for Akash Ambani, Rana Daggubati, you name it, he's done it. And he's also, by the way, the CEO of our team, of our company. And it is something that we realized कि event planner को बोलने से अच्छा है बार बार हम खुद पे ही ले लेते हैं. It comes with a certain price. Dheeraj is not cheap, by the way. The jokes apart, but it comes at a certain price कि हम लोग को इतना time involvement डालना पड़ता है. But it's worth it. Product का efficiency goes up. Hi Raju. I think Rahul is here from Jaipur. Hi Rahul. A lot of people. Somebody's talking about your smile. I'm working on it, yaar. Tuesday शाम तक भी. I'm trying to stay up. I've had a very long day. But yeah. Yes. So no challenges. No, there is no challenge in a big wedding or a small wedding. The challenge really is the pre-production. और जिन लोगों को pre-production term पता नहीं है, just film industry में just Google what is film pre-production in films. तो आपको उससे पूरा आइडिया लग जाएगा. आप जब वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि there is 70% overlap of what a film pre-production unit does and what we do. फिल्म में जो प्रोड्यूसर होता है, जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उसका क्या रोल होता है, हम उससे क्या सीख के अपने बिजनेस में लगा सकते हैं. Right. I just have a quick question here, Anand. Sometimes, having a production group or a people who are just managing production might not. I think, sorry, आप बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हिंदी में बात करें. तो oh yes. If you, yeah. कभी लगता है कि हर एक टीम को, स्पेशली स्मॉल टीम्स को, एक स्पेशल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखना पॉसिबल नहीं होता है. तो एनी एडवाइस फॉर दैट कि ये कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, फ्रीलांसर्स आप डालिए, बहुत सारी जॉब्स हैं, freelancer.com है. आप वेडलांसर पे आइए, वेडलांसर पे आप एक प्रोडक्शन का वर्टिकल बना सकते हैं. आप लोग के पास इतने अच्छे कनेक्ट्स हैं और बड़ी आसानी से लोग मिल जाते हैं. कई लोगों की स्पेशलिटी यही होती है चीजों को ऑर्गेनाइज करना,
शूट नहीं कर रहे, क्रिएटिव नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन कर बहुत अच्छे से कर देंगे। तो मेरे हिसाब से क्या मैंने आई थिंक मैंने आपका काम थोड़ा बढ़ा दिया, बट एट द सेम टाइम यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक आप सब लोग, अगर आप सब लोग को वेडलांसर से एक प्रोड्यूसर या वो सेक्शन चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना। बहुत चैलेंजिंग बना रहे हो हमारे लिए। नहीं यार, बिल्कुल, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम ऑल और नथिंग पे हैं आपके साथ। वी हैव So, टू what challenges you are facing, and you are throwing a challenge at me. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। हाँ, Nice, nice. Um, coming back to the topic of Pixniff, why we all are here today. See, I was sold at the idea पहले से, and I started using, to be honest, abhi like couple of months back. Delivered at least 5 sets through it, and I am happy. And more than that, my clients are super happy. But somebody who has made the product, आपसे सुनते हैं कि क्या है Pixniff. ओके, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन तो पुल अप नहीं कर सकता, बट मैं अपने कैमरा को वो रेयर कैमरा वाले मोड पे ले जाके लैपटॉप दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम ट्राई करते हैं कि पिक्सनिफ का एक कुछ समवॉट डेमो हो जाए। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, पिक्सनिफ इज अ प्रोजेक्ट, एक स्टार्टअप है जिसमें मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, और एक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था हमने, अब हम काफी सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इतनी पिक्चर जो खींचते हैं किसी भी वेडिंग में, पिक्सनिफ, या तो धीरज ने नाम लिख दिया, मैं भी वापस लिख देता हूँ, इट्स पिक्सनिफ, PICSNIFF। तो पिक्सनिफ का आइडिया ये था कि हमें आकाश अंबानी की वेडिंग में दोनों फैमिलीज ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे इतने सारे गेस्ट आए हैं दुनिया भर से, अमिताभ बच्चन, गूगल, सुंदर पिचाई, सब लोग आए हुए हैं, और हमें ये इमेजेस हम शेयर करना चाहते हैं उनके साथ। हमारे लिए तो हमारे बेटे की भी शादी है और एक बड़ा अच्छा ओकेजन है, हम शेयर करना चाहते हैं। हम गेस्ट ने हमसे, कितने ही गेस्ट ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि यू नो दिस इज अ बिग वेडिंग एंड वी वांट टू, एंड आई थिंक किसी भी वेडिंग में कोई भी गेस्ट हमेशा ये चाहेगा कि यार मैंने इतना अच्छे से तैयार होकर आया, मेरी पिक्चर्स तो मुझ तक पहुंचे। Yes. और हम फोटोग्राफर्स तो ऑफकोर्स चाहते हैं कि हमारी वाटरमार्क लगी हुई, हमारी ब्रांडिंग वाली इमेजेस सब लोगों तक पहुंचे, ताकि ये इंस्टाग्राम पे या अनाप शनाप जगह एड्स पे खर्चा नहीं करना पड़े। तो हम इन 3 प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो आई विल शो यू। तो मैं अभी मेरी स्क्रीन को फ्लिप करूंगा और मेरे लैपटॉप की तरफ पॉइंट करूंगा, होपफुली चीजें फोकस में होंगी, एंड मैं एक लिंक दिखाऊंगा जो कि आकाश अंबानी के फादर इन लॉ रसल मेहता के साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैट चल रहा है। तो इवेंट हो जाने के बाद इस तरह से हम पिक्सनिफ के यूज से विजिबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है। ये प्ले स्टोर में नहीं है, मैन विद द कैम 82, ये एक वेब एप्लीकेशन है। pixniff.com पे जाकर, लेट मी जस्ट टाइप इट फॉर यू, आप जा सकते हैं PICSNIFF.com, pixniff.com। ये एक वेब एप्लीकेशन है, किसी भी क्लाइंट को कुछ इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। चलिए, आई विल ट्राई एंड फ्लिप द कैमरा एंड शो यू इट, पिक्सनिफ इन वर्किंग। सो ये मेरी एक चैट है विद अ क्लाइंट, जिनको मैंने इवेंट खत्म होने के बाद एक लिंक भेजा है और एक पिन कोड भेजा है कि आप अब फेस रिकग्निशन के थ्रू अपनी डिस्कवरी कर सकते हैं। तो वो जो क्लाइंट है वो लिंक पे क्लिक करते हैं, वो लिंक उन्हें एक वेबसाइट पे ले जाता है। मेरी कंपनी की ब्रांडिंग दिख रही है, अगर आप अब जैसे जो भी यूज करेगा उसके कंपनी की ब्रांडिंग दिखेगी। क्लाइंट एक पिन कोड एंटर करता है, उसके बाद क्लाइंट को एक फॉर्म दिखता है, उस फॉर्म पे उन्हें अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है और उन्हें क्लिक करना है फाइंड माई इमेज। अब ये सब मोबाइल फोन पे होगा, मैं लैपटॉप पे हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, बट मोबाइल पे सेल्फी कैमरा का स्क्रीन खुल जाएगा। तो ये करके, एंड यहाँ पे सेल्फी कैमरा खुल गया। तो अब मैं मेरी पिक्चर ले लेता हूं। अब जब हम बात कर रहे हैं तो 28,000 इमेजेस में से मेरी इमेजेस ढूंढने की कोशिश हो रही है, एंड डन। तो राइट, यहाँ आप मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। अगली इमेज पे जाने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पर हूँ इस इमेज में, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर हूँ, आकाश मिस्टर अंबानी। एंड इस पॉइंट पे क्लाइंट अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं,
सोशल मीडिया पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट वो चाहें तो एक सिंपल बटन है, अपलोड, अपलोड का बटन दबा के अपने फोन से खींची हुई पिक्चर्स वापस ऐड कर सकते हैं, ताकि जो अगला जना है उसे ना केवल प्रोफेशनल फोटोग्राफर बल्कि क्लाइंट के फोन वाली पिक्चर्स भी मिल जाएं। तो विद इन से 10-15 सेकेंड्स हमने क्लाइंट्स को सारी इमेजेस, हर क्लाइंट के हर गेस्ट तक सारी इमेजेस पहुंचा दी हैं। एंड इनफैक्ट ब्यूटी ऑफ इट इज कि पिक्सनिफ एक मार्केटिंग टूल की तरह बहुत इफेक्टिवली काम करता है। राइट। हमारे जो बैकएंड है, ये मेरे इस तरह का बैकएंड हर फोटोग्राफर को मिलता है, और वहां पर एक स्मॉल आइकन है कॉल्ड इनसाइट स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि पिक्सनिफ का इम्पैक्ट क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल पिक्सनिफ की मदद से मेरे क्लाइंट्स ने 3 लाख इमेजेस अपनी ढूंढी, 3000 क्लाइंट्स ने रजिस्टर किया है। ये मेरा मंथली परफॉर्मेंस रहा है पिक्सनिफ पे। एंड हर एक क्लाइंट का, अभी जैसे मैंने सर्च किया तो आनंद राठी, मेरा ईमेल, मेरा फोन नंबर, मेरी 11 इमेजेस मिली। ये सारा डेटा अब रिकॉर्ड हो रहा है हर फोटोग्राफर के लिए। और अब अगली बार जब आपको इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना, और अभिषेक भाई तो इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट है, वो बता सकते हैं कि इस तरह का डेटा अगर चाहिए तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ये डेटा इटसेल्फ इज वर्थ इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, क्योंकि आप अपने क्रीम क्लाइंट तक आप सिर्फ एक बटन दबाना है और यहाँ पर एक CSV फाइल डाउनलोड हो गई। ये फाइल आप अपने फेसबुक पे अपलोड करें, और आपके क्लाइंट जहां पर भी होंगे वो जब भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नेटवर्क में होंगे वो आपके ऐड देखेंगे। हर एक जना आपका ऐड देख सकता है। आप चाहें तो व्हाट्सएप कैंपेन रन कर सकते हैं। I mean, possibility of marketing from here are endless. True. This is crazy. So, ये अटेम्प्ट था पिक्सनिफ का, जो हमने सबसे पहले अंबानीज में ट्राई किया। हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने फिर 1 साल के लिए तो इसको सिर्फ रील्स एंड फ्रेम्स के क्लाइंट्स के लिए यूज किया। और उसके बाद आई थॉट कि ट्राई करते हैं कि इंडस्ट्री को भी ये एडवांटेज दे। तो इसे एक स्टार्टअप की तरह लॉन्च किया है। एंड या दैट्स इट्स पिक्सनिफ हैज बीन लाइव। इंडिया में बोले तो अर्जुन कार्था, राजा बादल, शटर डाउन लक्ष्य चावला, दीपक स्टूडियो, दे आर ऑल यूजिंग इट एंड they've got great results. So I'm eager to take it to the larger community. Absolutely. आनंद, एक फनी चीज बताता हूँ अबाउट पिक्सनिफ। ओके, मैंने ट्रायल करने के लिए, बिफोर सेंडिंग इट टू क्लाइंट, जो खुद को एक बार ट्रायल करना होता है ना, तो आई अपलोडेड सम ऑफ माय इमेजेस फ्रॉम 2015 एंड इट्स स्टिल अच्छा, वेरी नाइस। तो हाँ, हमने काफी टाइम लगाया इसको। 99.4% पे है अभी ये एक्यूरेसी में। तो काफी टाइम लग गया, क्योंकि इंडियन फेसेस के लिए डेटा अवेलेबल नहीं होता, ट्रेनिंग डेटा, तो टाइम लगा। बट आई एम सो हैप्पी दैट you could find old images. And now imagine किसी क्लाइंट के लिए जिसकी शायद पहली एनिवर्सरी या 5th ईयर एनिवर्सरी है, उसके लिए कितना अमेजिंग होगा कि अपनी मेमोरीज को वो रिलिव करे। और अगर आप उसे ये दे पा रहे हैं एज अ फोटोग्राफर, तो आई एम श्योर कि वो आपको वापस पलट के बिजनेस भी देगा। Correct. True. Somebody is asking, is it also it has data storage? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं दिखा देता हूँ अगेन वापस फोन को फ्लिप करके कि पिक्सनिफ एक कोई सिंपल फेस रिकग्निशन ऐप नहीं है, पूरा फुल स्वीट है। यहाँ पर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जैसे आप लोग शायद गूगल ड्राइव या स्मगमग या पिक्सी सेट कोई भी वेबसाइट और यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से आपके पास गैलरीज हैं जो कि कस्टमाइजेबल हैं, आपकी ब्रांडिंग कस्टमाइजेबल है। आपके क्लाइंट्स उन गैलरीज पे एल्बम सिलेक्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट एल्बम सिलेक्शन पे हमने काफी नए फीचर्स पे वर्क किया है, जो कि पिक्सी सेट से भी तेज काम करते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं। तो एक पूरी फुल फ्लेजेड गैलरी है। अगेन पिक्सी सेट में जैसे क्या होता है कि यहाँ पर आके कोई लोडिंग का बटन आता है, फिर आप वेट करते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह का नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, वो इमेजेस लोड करना शुरू कर देगा कहीं भी। मैं यहाँ से नीचे भी खींच दूं तो ऐसा नहीं है कि पुरानी इमेजेस चाहिए। क्लाइंट्स अपने फेवरेट्स मार्क कर सकते हैं। अगर वो गया, उन्होंने फेवरेट मार्क किया, तो ये फेवरेट में ऐड हो जाती है, जो फोटोग्राफर बैकएंड पे देख सकता है कि भाई मेरे क्लाइंट को ये इमेजेस चाहिए एल्बम के लिए।
और यहाँ से डायरेक्ट शेयरिंग है, डाउनलोडिंग है, यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज, ड्रॉप बॉक्स पे ऐड कर सकते हैं. सो फुली लोडेड एट द बैक एंड. परफेक्ट. आनंद, मुझे लगता है कि फिलहाल मतलब फॉर अ कन्वर्सेशन सेक आई एम डिवाइडिंग फोटोग्राफर्स इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, एक वो है जो अभी भी ट्रेडिशनल वे से डिलीवर कर रहे हैं, लाइक दे आर सेंडिंग अ पेन ड्राइव और समथिंग लाइक दैट. एंड द अदर कैटेगरी जो फॉर एग्जांपल गूगल है या कोई और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है. ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे एक या दो कौन से फीचर्स है कि आप बोल सकते हो पिक्सनिफ बाकी सारे फोटो शेयरिंग ऐप से टोटली डिफरेंट है. व्हाट डिस्टिंग्विशेस पिक्सनिफ? बिल्कुल. तो सबसे पहला फीचर तो ये पुनीत की पिक्सनिफ एक फोटो शेयरिंग ऐप से बढ़कर है. क्योंकि अगर आपको जिस तरह से मार्केटिंग करनी है, मतलब आप ये सोचिए अगर आप ड्रॉप बॉक्स पे हैं या गूगल ड्राइव पे हैं, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने वो फोटोज देखी हैं. दूसरी बात, गूगल ड्राइव में आप हमेशा वही 1000-2000 फोटोज एक साथ शेयर करेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग वो देखेंगे नहीं 2000 फोटोज, और अपनी ढूंढना तो भूल जाइए. करेक्ट. हम बड़े डेटा ड्रिवन है, क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूँ खुद, तो मेरे को ये समझ में आता है कि यार किसी भी चीज में पैसा डालने से पहले मुझे ये बताओ कि वो चीज एग्जैक्टली मेरे को प्रूव करके दिखाओ कि उससे मेरे क्लाइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उन तक मेरी ब्रांड का नाम पहुंच रहा है, उनको वाव फैक्टर लग रहा है. तो ये जो सर्च फंक्शनैलिटी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग है, ये एक डेफिनेट विनर फीचर है. दूसरा, आज गूगल ड्राइव में आपका डेटा 10 लोगों ने देख भी लिया, मान लीजिए, आप उन तक वापस कैसे पहुंच रहे हैं? कोई कांटेक्ट नहीं, कोई खबर ही नहीं कि कौन देख रहा है. यहाँ पर आप उस लेवल तक वापस पहुंच सकते हैं कि आप एक इंस्टाग्राम एड रन कर सकते हैं सिर्फ उन 10 लोगों को दिखाने के लिए. राइट. तो आप ऐसा सोचिए कि आप एक वेडिंग में गए जहां पे बहुत अच्छी आपकी सेलिब्रिटी वेडिंग थी, बड़ा मजा आया. अब उस वेडिंग के सर्कल को आप अपनी ब्रांड बार बार दिखा सकते हैं एट कुछ भी नहीं, 400-500 रुपए का इंस्टाग्राम एड में आपको दिखा सकते हैं. नॉर्मली जाएंगे हजारों लग सकते हैं, अगर अग्रेसिव हो गए तो लाखों भी लग सकते हैं, क्योंकि जितना पॉश यूजर होता है उसको दिखाने की कॉस्ट उतनी बढ़ा देता है इंस्टाग्राम. राइट. और तीसरी बात, ये गूगल हुआ या पिक्सी सेट्स, मगमग हुआ, वहां पर जो एल्बम सिलेक्शन के फीचर्स हैं वो अभी भी बहुत आई वुड से वो इवॉल्व नहीं हुए. वो फीचर्स नॉर्मल जैसे लॉन्च पे थे वैसे हैं, कुछ जगह तो मिसिंग ही है. और हम जानते हैं कि एक इंडियन वेडिंग में जब तक एल्बम नहीं आता तब तक पेमेंट नहीं क्लियर होता. तो हमारा एम ये था कि यार बिना किसी गाइड बुक के किसी भी नॉर्मल क्लाइंट, मम्मी पापा, उस कैटेगरी के क्लाइंट को ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि यार एक स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दी, वो खुद से बैठ के सिलेक्शन कर लें. अगर इसकी वजह से हमारा एल्बम सिलेक्शन का टाइमलाइन 4 दिन भी घट जाता है किसी एक क्लाइंट के लिए, वो 4 दिन हमारे लिए फ्री हो गए काम करने के लिए. और हमारे बिजनेस का एक बेसिक उसूल है, आप जितना टाइम कंप्यूटर के सामने या पोस्ट प्रोडक्शन में स्पेंड कर रहे हैं, आप उतना पैसा लूज कर रहे हैं. सिंपल. आप पैसा कमा नहीं रहे हैं, उस समय आप पैसा लूज कर रहे हैं. ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना क्लियर है. हमको लगता है अरे हम तो एडिट कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, ये तो हमारा पार्ट ऑफ द जॉब था, इसी से तो पैसा कमा रहे हैं. नहीं, एडिटिंग आप बहुत तेजी से आप किसी भी और से करवा सकते हैं, बट फोटोग्राफी हर जना नहीं कर सकता. तो आपका काम है फोटो खींचना, बाकी सारा काम पिक्सनिफ हैंडल करेगा. आनंद, मैंने पर्सनली यूज किया है, एज आई मेंशन्ड अराउंड 4 or 5 clients we have so far sent the entire portfolio to this. मुझे एक चीज बहुत पसंद आया है, अच्छा लगा, वो ये है कि क्लाइंट नहीं चाहता कि उनके जो भी 3 दिन के वेडिंग के 5-7 हजार फोटोग्राफ्स थे सारे के सारे सब रिलेटिव्स के सामने जाए. ठीक है, बट क्लाइंट ये चाहता है कि हर रिलेटिव का फोटो उसके पास पहुंचे. तो दे वांट टू कीप देयर फोटोज प्राइवेट बट सेंड रिलेटिव्स के फोटोज. एंड दिस इज वेयर यू नो ये बहुत हेल्प हुआ, बहुत हेल्प, क्योंकि वो टाइम नहीं डालेंगे कि हर एक चाचा मामा फूफा का फोटो अलग से निकाल के दे, बट ये भी नहीं चाहेंगे कि सारे फोटोज उनको भेज दे. सो दिस वाज एब्सोल्युटली, या बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है कि हम इसको शेयर करना चाहते हैं, बट कभी कभी कपल बोलता है अरे नहीं, यू नो इतनी सारी मेरे को उस फ्रेंड को नहीं दिखानी और इसको नहीं दिखानी. देयर इज नो मोर ऑफ दैट प्रॉब्लम नाउ. जो जिस फोटो में है सिर्फ वही मिलेंगी उसको. कोई नितिन पूछ रहे हैं व्हाई द प्राइसिंग इज इट डॉलर, इज इट इन इंडियन कंपनी, व्हाई नॉट इन INR?
कोई खास कारण नहीं है नितिन, क्योंकि गूगल भी अपनी प्राइसिंग डॉलर में देता है, तो आप लोग के लिए इजी होगा कंपेयर करने के लिए, एंड दैट इज द ओनली रीजन क्योंकि प्राइसिंग डॉलर में लिखी गई है। कैन आई टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस? आई थिंक आई मिस सम क्वेश्चंस ऑन Pixniff. Do you mind if I take them? Of course. Go ahead. Okay. ओके। कोई जना पूछ रहा था कि पेन ड्राइव पे डिलीवर करते हैं यार। पेन ड्राइव के साथ मेरा एक ही क्वेश्चन है कि, या एक ही सजेशन है कि आप कितने की आती है एक पेन ड्राइव आजकल? 32 GB टाइप्स 500 रुपए की होगी आई थिंक, यार समवेयर 32 अराउंड दैट। हाँ 700-800 रुपए जाता है एक पेन ड्राइव का। चलिए 500 भी पकड़ लेते हैं। एक वेडिंग में 2 तो जाएंगी, एक ब्राइड साइड जाएगी, एक बॉय साइड जाएगी, 1000 रुपए वहां हो गए। आपने 20 वेडिंग भी शूट करी साल में, जो कि एक बहुत कंजर्वेटिव नंबर है, तो 20,000 रुपए तो वहां खर्च हो गए, राइट? राहुल बोल रहे हैं 300 की आती है। आई थिंक 300 में नहीं आती, 32 GB 400-500 तक जाती है, और उसको जाके डिलीवर भी करोगे भाई, पेट्रोल जाएगा, सब कुछ कॉस्ट मिल मिला के आपने 20-25 हजार रुपए पेन ड्राइव डिलीवर करने पे लग दिए। जो कितने लोग देख रहे हैं? मतलब 30, 40, 50 लोग, राइट? मैक्सिमम। आपके ऊपर है कि आप अपना काम 50 लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब या वो 20 वेडिंग में कितने लोग आए होंगे? कम से कम अगर 300 लोग भी पकड़े तो 6,000 लोग आए उस 20 वेडिंग्स में। अगर हम पेन ड्राइव दे रहे हैं तो हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम हमारा काम सिर्फ 40 या 50 लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। हमारे पास अब फाइनली एक ऑप्शन है कि हम 4,000 तक पहुंच सके। तो दैट इज माई मतलब पेन ड्राइव वर्सेस पिक्सनिफ को मैं ऐसे देखता हूँ। True. राइट। Abhishek, you have any question? मेरा मतलब आई नेवर यूज्ड Pixniff, बट मेरा यही क्वेश्चन था कि लाइक हाउ टू यूज Pixniff, बट आनंद जी हैज ऑलरेडी कवर्ड दैट। I think he has touched all the points. So, guys, to our viewers, if you have any questions about Pixniff, or if you have any questions you want to ask to Anand, please feel free. Now is the time. मेरे तरफ से एक आखिरी क्वेश्चन है उनको जो मैं पूछ रहा हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन चालू रखना। Anand, talking about our platform, Wedlancer, what do you think about the platform? So I think not only was it the need of the hour, but I've genuinely not come across a platform which is as well made as yours in India. मैं खुद एक स्टार्टअप फाउंडर हूं, तो मैं जानता हूं कि डिजाइन, यूआई, यूएक्स का कितना फर्क पड़ता है। तो हैट्स ऑफ टू योर टेक्निकल टीम, बहुत ही अच्छा काम। दूसरी बात ये कि एक इंडियन मार्केट में जो केओस है उसको कैप्चर एंड ऑर्गेनाइज करना एक नेसेसिटी है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते। आज मैं कितनी लोगों को जानता हूं, मैं जयपुर में हूं आज की डेट में, मैं जयपुर से लाइव आया हूं, तो जयपुर में बैठे हैं और उन्हें चाहिए कि यार कुछ अच्छा फ्रीलांसर मिले, बट उन्हें लगता है बॉम्बे दिल्ली वाले ही होंगे अच्छे, तो और वो कुछ भी अनाप शनाप रेट्स में और अनाप शनाप टर्म्स में उनको बुला लेते हैं। बट आज अभिषेक भाई जहाँ बैठे हैं, गुजरात में इतने बढ़िया फ्रीलांसर्स होते हैं, पंजाब में इतने अच्छे फ्रीलांसर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग ने जो किया है वो एक इंडियन फ्रीलांसर कम्युनिटी के लिए यूनिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ताकि सब लोगों को एक्सपोजर मिले, टैलेंट ऊपर आए रादर देन लोकेशन का नाम हो। राइट। और दूसरा हम लोग एज ओनर्स भी, आई थिंक एवरी सीजन हम लोग कुछ नहीं तो 50, 60, 70 डेट्स पे फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं। तो उसमें जो टाइम जाता है सर्च करने का, और फिर आप पूछ रहे हैं कि अरे फ्री हो क्या, फिर वो बोल रहा है नहीं नहीं अभी बताता हूँ, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ। यहाँ पे एवरीथिंग आपने बहुत सीमलेसली ऑनलाइन बनाई है। तो मेरे हिसाब से सारे ओनर्स भी जो सुन रहे हैं, या कोई भी फाउंडर्स भी हैं, या सीनियर पीपल इन एनी फोटोग्राफी कंपनी, आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि जो दिन बच रहे हैं उनकी कीमत को कहीं ना कहीं लगाएं प्लीज। आप ऐसे सोचे कि वो दिन आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, या कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, या नया शूट ले सकते हैं। तो वेडलांसर पे आना मेरे हिसाब से खर्चा नहीं है, एक सेविंग है फ्रॉम द पॉइंट यू लॉग ऑन टू द वेबसाइट। सो आई विल स्ट्रांगली एनकरेज कि अपने सर्कल में भी इसको सर्कुलेट करें। रीजन फॉर दैट बीइंग कि कोई भी वेबसाइट इस तरह की, वो जितनी कम्युनिटी तेजी से बढ़ेगी, आपको उतने ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको उतने हाईलाइट्स मिलेंगे या उतने व्यूज मिलेंगे। आप एक फ्रीलांसर को देख रहे हैं या हायर करना चाहते हैं तो आपको उतने ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे।
तो प्लीज आफ्टर दिस सेशन इज ओवर अपने सर्कल में प्राइवेटली भले व्हाट्सएप पे डेफिनेटली वेडलांसर के लिंक को एक बार शेयर करें एंड लेट्स गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ वर्क फॉर गुड. ट्रू. आनंद, सालों पहले ना आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली, ओके, और जब भी मैं कोई सिलेक्शन के लिए जाता था मुझे ना 10 से 15 बॉल मैक्सिमम खेलने मिलते थे, कभी कभी 3 या 4, और जो सिलेक्ट करने के लिए सामने खड़ा है ना, ही यूज्ड टू टेल मी कि 4 बॉल में समझ जाता है, ठीक है. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज समटाइम्स व्हाइल डिस्प्लेइंग द वर्क या कभी अपना काम लोगों तक लेके जाते वक्त हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कुछ लोगों को ये डाउट रहता है या समझता नहीं है कि क्या काम दिखा है या कैसे देखा जाता है. तो इतने साल से आप वेडिंग कर रहे हो, आपकी नजर इतनी जबरदस्त है, आप एक फ्रीलांसर हायर करते वक्त क्या चीजें देखोगे? यार फ्रीलांसर हायर करना ना एक ब्लाइंड डेट पे जाने जैसा है. जब आप ब्लाइंड हम में से जो लोग फॉर वॉट एवर रीजन ब्लाइंड डेट पे गए हैं या जिन्हें ब्लाइंड डेट का कॉन्सेप्ट पता है, भाई ब्लाइंड डेट में आप किसी ऐसे जने से डेट करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप पहले मिले नहीं हो, ठीक है. आपने शायद सुना है, शायद एक आध कुछ फोटो देखी है, कभी कभी तो वो भी नहीं. तो ब्लाइंड डेट में क्या होता है कि जनरली आप मान लीजिए आप एक पब या क्लब या कहीं मिल रहे हो, तो मान लीजिए मैं लड़का हूं, मैं किसी से ब्लाइंड डेट पे वॉट एवर सम वन बॉय इज मीटिंग वन गर्ल, तो जब तक लड़की उसके पास आई नहीं और उसने कुछ बोला नहीं, उससे पहले ही वो लड़का जज कर चुका है या वो लड़की जज कर चुकी है कि सामने वाला कैंडिडेट कैसा है. राइट, होता है ऐसा, प्रैक्टिकल है. राइट, ट्रू. तो सेम फ्रीलांसर्स में भी वैसा ही होता है. फ्रीलांसर ने अपना काम तो बहुत बाद में दिखाना होता है. उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, उसने जो प्रोफाइल बना रखी है, उसने जो लैंग्वेज लिख रखी है, उसमें ही जज हो गया है कि आज डेट होनी है कि नहीं होनी है. उसके बाद क्या होता है, सिर्फ बोनस है. अगर उसका पोर्टफोलियो अच्छा है तो बोनस है. मैंने कितने ही फ्रीलांसर्स को हायर किया है उनके स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर पे, और अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इसलिए नहीं क्योंकि उनका काम बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स हाँ, वेडलांसर में आप वैसे वो भी ऑप्शन रख सकते हो, धीरज भी कह रहा है वेडलांसर में राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप रख सकते हैं. इट विल बी वेरी कन्वीनियंट कि एक सिटी. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, जितने भी फ्रीलांसर्स को हमने हायर किया, हमने किसी को भी उनके काम पे हायर नहीं किया. हमने उनके जो भी वो लिखते हैं हमें या जो भी जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं उस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनके साथ काम हो पाएगा कि नहीं. हमारी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी नीड्स होती हैं. तो हमारी नीड तो सिर्फ पर्सनालिटी एटीट्यूड में ही हो जाती है. बाकी काम सिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अगर आपकी टेक्निकल स्किल थोड़ी कम है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको हायर कर रहा हूँ कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी के साथ आ रहे हैं. आपको पता है कि रील्स एंड फ्रेम्स किस तरह से काम करता है. तो जितने भी फ्रीलांसर्स यहाँ पर हैं, आप अपने पोर्टफोलियो पे तो काम करें, बट 20 इमेजेस से ज्यादा नहीं. 20 इमेजेस से ज्यादा यार, इंस्टाग्राम 15 सेकंड की रील दिखा रहा है, मतलब अब तो आई थिंक 5 सेकंड की भी रीलें शुरू हो जाएंगी कि आप मतलब 2-4 फोटो देखें. हाँ ठीक है, चावल का दाना देखकर पूरे बर्तन का हाल समझ में आ जाता है. तो 20 फोटो में पूरा फ्रीलांसर क्या कर सकता है वो सब समझ में आ जाता है. बट जो चीज उससे भी पहले आती है वो ये है कि वेडलांसर पे मान लीजिए आपकी प्रोफाइल है, आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आपने क्या फोटो लगाई है. छोटी सी चीज, कुछ लोग वेडलांसर पे टेंडर वाली फोटोज लगा देते हैं. एब्सोल्युटली, आई कम टू दैट कि कोई इसमें खड़ा है बंदा क्लिफ पे ऐसे हाथ लेके शाहरुख जैसा वर्सेस अ प्रोफेशनली, लाइक कौन से प्रोफाइल को आप ज्यादा देखोगे? बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं शायद वो शाहरुख खान वाले से थोड़ा कतराऊंगा, क्योंकि शायद उस आदमी का अटेंशन एक शो ऑफ पे ज्यादा है. और वही फोटो अगर आप एक स्टूडियो में लो जिसमें बढ़िया कुछ आपने हेयर लाइट बनाई, कट लाइट बनाई, कुछ कुछ किया, अपनी खुद की फोटो पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस बारे में उसमें कितनी अच्छी चीज हो जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हो सामने वाले को. आप ये दिखाना चाह रहे हो कि देखो मैं कितना अच्छा फोटोग्राफर हूँ, है ना. तो ये मेरा अप्रोच ही रहता है जनरली. Anand, I'm just going to pause over here and tell the viewers, because everybody who has been on Insta Live with us,
is harping on this same point again and again. तो जितने भी freelancers सुन रहे, please note down these things in your mind कि आपका अमेजिंग डिस्प्ले पिक्चर काम में नहीं आने वाला है, आपका पोर्टफोलियो काम में आएगा, और उससे ज्यादा आपका एटीट्यूड, आप क्या कपड़े पहन के आए हो, आप क्या लैंग्वेज बोलते हो, ये सारी चीजें भी देखी जाएगी. आई थिंक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दोस पॉइंट्स ओनली. एम आई राइट आनंद? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू. Perfect. I think I am done from my side, and there are a lot of questions coming for you, like mostly about the pricing of Pixsniff and plans available. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डॉलर में प्राइसिंग क्यों है. अभी भी कुछ लोग वहां पे हैं कि यार मतलब 75 की टेबल गूगल पे कैलेंडर वो कैलकुलेटर मिलता है. आई थिंक प्राइसिंग वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट जो समझना आसान है वो ये है कि Pixsniff आज की डेट में उस प्राइस पे आ रहा है जहाँ पे से आपके स्मग या उस तरह की प्राइसिंग पिक्सी सेट से भी नीचे, और हम जिस तरह के फीचर्स ला रहे हैं आज की डेट में तो हम यही मान लीजिए कि हम लॉस मेकिंग है. बट हमारा अभी का मोटिवेशन सिर्फ यही है कि पहले हम ये फीचर हम इस पार्टी को कूल बनाना चाहते हैं. अब उसमें एंट्री फीस क्या है वो बाद में देखी जाएगी. एज ऑफ नाउ मैं ये जानता हूँ, पुनीत आई थिंक यू कैन स्पीक अबाउट Pixsniff कि वैल्यू मिल रही है कि नहीं. डू यू फील कि वैल्यू मिल रही है बाय द वे? एब्सोल्युटली. आई मीन आफ्टर 3 weddings only I can say value मिल रही है. I was ग्रेट. बस last year you announced this product. Only thing is हम थोड़े procrastinate करने में भरोसा रखते हैं, तो finally buying the product happened a couple of months back and totally happy. एब्सोल्युटली. तो बाय द वे बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, एक चीज और है, Pixsniff इज फ्री टू ट्राई. आप 10 GB की स्पेस तक फ्री ट्रायल ले सकते हैं. तो आई डोंट थिंक मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको इस तरह के फ्री ट्रायल्स मिलेंगे इतनी सर्विसेज के साथ. तो मेक गुड यूज ऑफ इट. ये फ्री ट्रायल हम कब तक रन करेंगे हमें कुछ खास आइडिया नहीं है, अभी कर रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई इट. Okay. Anand, do you want me to take the questions or do you want to go through the comments? आप जैसे भी आप ठीक समझे. Let me check. Okay, I think it was more about what plans are available and storage क्या है. Guys, whoever is asking about plans and storage, आनंद ने और उनकी टीम ने already website दिया हुआ है. You can log into the website and find out. जैसे उन्होंने कहा कि trial free है 10 GB के साथ, so you can try with that. If you have any questions, last 1 or 2 questions we will take for Anand. Just type it in your comment section. अभिषेक, where are you exactly now? I know आप नासिक जा रहे हो, but रुके किधर हो? मेरे को भी पता नहीं है. On the way, like कोई होटल आया था जहाँ पे थोड़ा लाइट था. I was like, let's stay here only. सही है. I think Anand, you have answered everything already. वेबसाइट अब भी ऊपर लिखा है. ऋत्विक, आपके ऊपर का कमेंट देख लो, उधर ही वेबसाइट लिखा हुआ है. So thanks Anand, thanks for coming live with us. Thank you Abhishek, thanks Puneet. Thank you so much Anand ji, thank you so much. And Thank you guys. जो भी Wedlancer के बारे में अच्छे कमेंट्स डाल रहे, thank you so much. Keep showing love for Wedlancer. See you in next live guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night everyone. Bye. Good Good night. Bye bye.